নমস্কাৰ আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা আৰম্ভণি দিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ শ্ৰীলংকাত ক্ৰমান্বয়ে ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাই গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশখনত দেখা মাৰাত্মক অৰ্থনৈতিক সংকটৰ পিছতে বিৰোধী দলসমূহে ৰাষ্ট্ৰপতি গোটাবায়া ৰাজপাকছেক পদত্যাগ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে সোমবাৰে শ্ৰীলংকাত বিৰোধী দলে ব্যাপক বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰপতি গোটাবায়া ৰাজপাকছে পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ৰাজধানী কলম্বোৰ মেমৰিয়েল হল তথা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কেইবা হাজাৰৰো অধিক প্ৰতিবাদকাৰীৰে দেশখনৰ সেনা আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হতাহতিৰ সৃষ্টি হয় এই সংঘৰ্ষত সেনা তথা আৰক্ষীৰ কেইবাখনো বাহনৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয় ইফালে বিৰোধী দলসমূহৰ সন্মিলিত চৰকাৰত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি গোটাবায়া ৰাজপাকছেক জনোৱা আহ্বানক নস্যাৎ কৰিছে শ্ৰীলংকাৰ বিৰোধী দলসমূহে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এই আহ্বানক অযুক্তিকৰ বুলি আখ্যা দিছে বিৰোধী দলসমূহে শ্ৰীলংকা চৰকাৰে দেশখনত জৰুৰী অৱস্থা জাৰি কৰাৰ পৰা এই পৰ্যন্ত প্ৰথমখন সংসদীয় অধিৱেশনৰ আহ্বান কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদত্যাগৰ দাবীত অগ্নিগৰ্ভা হৈ পৰিছে শ্ৰীলংকাৰ পৰিস্থিতি ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বিৰোধীয়ে আগবঢ়োৱা পদত্যাগৰ প্ৰস্তাৱো নাকচ কৰিছে ভয়াৱহ অৰ্থনৈতিক সংকটে জোৰা কৰা দেশখনত অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি আন সামগ্ৰীৰ মূল্য ঔষধৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে শ্ৰীলংকাত ইফালে শ্ৰীলংকাৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ গভৰ্ণৰ অজিত ক্যাব্ৰালে সোমবাৰে পদত্যাগৰ পিছতে অৰ্থনৈতিক সংকট মোচনৰ বাবে নতুন অৰ্থনৈতিক নীতি প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলিছে দেশখনত লক্ষণীয়ভাৱে আৰ্থিক সংকটৰ মোচনৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰপতি গোটাবায়া ৰাজপাকছে আৰু জ্যেষ্ঠ ভাতৃ তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী মহিন্দ্ৰ ৰাজপাকছেৰ বাদে ২৬ জনকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিছে আৰু জনসাধাৰণৰ বিক্ষোভে এতিয়া তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেশখনত ইণ্টাৰনেট সেৱা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সকলো ছাইট বন্ধ কৰি দিছে চৰকাৰে ভাৰত চুবুৰীয়া দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনলৈ ইন্ধনৰ নাটনি জোৰা মাৰিবলৈ ৫০০ কোটি টকা শ্ৰীলংকা চৰকাৰক ধাৰলৈ প্ৰদান কৰিছে ৰাজপাকছে পৰিয়ালৰ ভুল নীতিৰ বাবে দেশখনত অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ অভিযোগ তুলি জনসাধাৰণে ব্যাপক গণ আন্দোলন গঢ়ি তুলিছে इस वक्त मैं मौजूद हूं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की एक सब्जी मंडी में। श्रीलंका में कीमतें आसमान छू रही हैं और हर चीज के दाम आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। ये आप देखिए, ये प्याज है जिसकी कीमत है 120 रुपए, वो भी आधा किलो, यानी 1 किलो की कीमत हो गई 240 रुपए। इसके अलावा हम देखें आलू 120 रुपए का आधा किलो, ये भी 240 रुपए का 1 किलो है। आलू और प्याज जो हर सब्जी का स्वाद बढ़ाते हैं और किचन में सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर हम लहसुन की बात करें तो ये यहाँ पर 180 रुपए का 250 ग्राम है, यानी कि 1 किलो की कीमत 800 रुपए से ज्यादा है। तो ऐसे में जो आम आदमी है वो खरीद नहीं पा रहा है। कीमतें हर चीज की, जो चीजें जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, वो उसकी पहुंच से दूर होती जा रही है। हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं कुछ फ्रूट्स के बारे में, हम आपको बताते हैं। ये आप देखिए, ये है, हम बात करते हैं केले की। ये केले यहाँ पर बहुत वैरायटी के रखे हुए हैं और हम शॉपकीपर से जानेंगे कि इसका प्राइस क्या है। व्हाट्स द प्राइस ऑफ बनानास? बनाना 241 किलो। हाँ जी, 241 किलो। 240 फॉर 1 kg। अब आप देखिए, केले की कीमत है 240 रुपए 1 किलो, यानी कि कोई भी सब्जी आप देख लीजिए वो 200 रुपए से ऊपर है। कोई भी फ्रूट आप देख लीजिए उसकी कीमत ज्यादा है। अब हम ये देखें, ये पपीता रखा हुआ है, इसकी कीमत इस वक्त श्रीलंका में है 230 रुपए 1 किलो, यानी हर दिन कीमतें आसमान छू रही है और जो कल का प्राइस होता है आज का प्राइस अलग हो जाता है। कीमतें दोगुनी होती जा रही हैं। ये हम मंडी में आए हैं और सबको मालूम है कि मंडी में मार्केट से कम कीमतें होती हैं। जब मंडी में ये हाल है, जहां से चीजें बाजार में जा रही है, तो फिर जब ये बाजार तक पहुंचती है, दुकानों तक पहुंचती है, तो उसके बाद क्या हाल होता होगा ये आप समझ सकते हैं। हम आगे आते हैं। व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस? 251 किलो। 250। हाँ। तो ये अमरूद है 250 रुपए का 1 किलो। आम बहुत लोगों को पसंद होता है। अब आप देखिए, आम का प्राइस है 500 ग्राम 250 रुपए, 1 किलो हो गया 500 रुपए का। तो आम आदमी की जेब में डाका डला हुआ है, न पैसे हैं, न रोजगार है, न घर में गैस है, न पेट्रोल है, न डीजल है। 17 घंटे का पावर कट है और ये इस वक्त हाल है। आप देखिए कि ये दुकान है जो लग भी रही है, लेकिन कुछ ब्लॉक्स इसमें आपको खाली भी नजर आ रहे हैं।
क्योंकि स्टॉक पीछे से ही नहीं आ रहा है। बहुत कम इसमें सब्जियां हैं। अब देखिए इसमें आधे ब्लॉक्स आपको खाली नजर आ रहे होंगे क्योंकि सप्लाई काफी कम हो रही है। ये मंडी का हाल है जहां से चीजें अलग अलग इलाकों में पहुंचती हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं। हम कुछ और चीजों के प्राइस देखते हैं। ये एप्पल हैं और ये प्राइस हम शॉपकीपर से, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस वन एप्पल, ग्रीन एप्पल? 100 and for 1 kg? One piece 160 रुपीस। आप समझिए, ये हम समझ रहे थे कि शायद यहाँ पे सस्ता है। ये 160 रुपए का एक सेब इस वक्त श्रीलंका में मिल रहा है। ये ग्रीन एप्पल है। और व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस रेड एप्पल? 170 फॉर 1 एप्पल। आप देखिए, तो ये आम आदमी तो दूर, संपन्न परिवारों के लोगों को भी सोचना पड़ेगा। 170 रुपए का एक सेब मिल रहा है। ये हालात हैं वाकई। जब हम मंडी में पहुंचे हैं तो हम खुद ताज्जुब कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो फॉर 1 पीस, दिस ऑरेंज 1 किलो फॉर 500। ये ऑरेंज है जिसका प्राइस है 500 रुपए 1 किलो। हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं इस वक्त। जगह जगह विरोध प्रदर्शन तो हो रहा है, लेकिन सब्जी मंडी में आकर के लग रहा है कि ये देश, एक हंसता मुस्कुराता देश, कंगाली पर पहुंच गया और लोग अब इस वक्त दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, ये आप कह सकते हैं। जिस देश में इस वक्त 160 रुपए किलो, 160 रुपए का एक एप्पल मिल रहा है और 500 रुपए के संतरे मिल रहे हैं, 500 रुपए का आम मिल रहा है, तो आप स्थिति समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ जसप्रीत कौर, कोलंबो, न्यूज़ 18 इंडिया।